हाय मैस्कॉट्स, हेलो बायोटोनियंस। मैं आप सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप में से कोई भी जीरो पे तो नहीं होगा, बट इवन देन इफ यू फील दैट योर बायोलॉजी इज नॉट गोइंग अप टू द मार्क, इफ यू फील दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड इन बायोलॉजी, हो सकता है आपने ये सोचा हो कि बायो इज डूएबल बिकॉज ऑफ विच यू वुड हैव पुट इन मोर एफर्ट, more energy or more problem solving towards your physics and chemistry, or for that matter you're feeling a little weak in botany, right? Your bio is going good but you're feeling a little weak in botany. What is it that you have to do? So this video will help those students who feel that they're at nearly zero level when it comes to biology, and how exactly should you progress, should you move ahead when it comes to biology. This is a very important video. Please follow whatever I'm going to tell you. Number one, my dear children, just pick up the weightages of last year. If I have to give you an example, for example, and see, now we are not going to divide it into 11th and 12th. Whatever I'm going to tell you is going to be a combined video. So there is going to be no division of 11th and 12th. It is going to be a combined video. Now, please listen to me. Number one, please pick up your books and kind of divide your syllabus into three halves. The most important is the highest weightage, then will come the medium weightage, and after that actually there are very little or low topics which are the low weightage, but चलिए थोड़े से topics को हम low weightage में डाल देते हैं. Now when I ask you to add the topics in high weightage, then there are topics like human physiology of class 11th, diversity, that entire first unit of class 11th, genetics, reproduction, evolution, ecosystem of class 12th, nearly the entire syllabus of class 12th. This will come in the first weightage. That means this is the most important thing. अब सारा तो एक साथ नहीं कर सकते, तो सपोज करिए आप क्लास 12th में हैं, आपका सारा क्लास 12th का सिलेबस हो चुका है, राइट? या ऐसा होगा कि आपको लगता है मेरा केमिस्ट्री भी मैं दिन में 2-3 घंटे पढ़ लेती हूँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एवरीथिंग इज फाइन, मैं क्लास 12th का सिलेबस बाद में पढ़ लूंगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेड इट नाउ. मैं काम करना चाहती हूँ, मैं 11th के थोड़े टॉपिक जिनमें मैं वीक हूँ उनको स्ट्रेंथन करना चाहती हूँ. सो मे बी इफ दिस कुड बी वन ऑफ द थॉट्स विच इज कमिंग टू योर माइंड, then out of the high weightage topics you pick up the class 11th high weightage topics. I repeat, first make 3 weightage areas for yourself. Number 1 are those weightage areas for yourself. I'm not wearing my specs, but that's okay. So number 1 are those weightage areas which are very high weightage. Number 2 will be your medium weightage topics, and number 3 will be your low weightage topics. So in your high weightage topics, if you're comfortable with your class 12 syllabus, please add in your class 11 syllabus, and in between your board exams in the month of May, please revise these topics. After that, you come to the medium weightage topics, and towards the end of May and the first week of June, or maybe the middle of June after your board exams, you come to the low weightage topics. Over the weekends you do it. अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि करें कैसे, हाउ, कौन सी बुक रेफर करें, क्या करें. देखो बेटा, यहाँ पर 2 सिनेरियोज हो सकते हैं. नंबर 1, अगर आपने पूरा साल 1.5 साल मेहनत की, आपको याद नहीं आ रही चीजें, बट दैट्स अनदर स्टोरी, बट आपने मेहनत की है. मान लीजिए अगर आपने मेहनत की है, आपने कोचिंग लगाई है, कोचिंग से वापस आके शाम को अपनी कोचिंग के नोट्स और एनसीईआरटी को कंबाइन करके अगर आपने एमसीक्यूज बनाया, दैट विल बी सिनेरियो नंबर 1. बट मोर इंपॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि सिनेरियो नंबर 2 होगा. अब मेरा क्या मतलब है सिनेरियो नंबर 2 से? सिनेरियो नंबर 2 से मेरा मतलब है, ऐसा हो सकता है कि आपने सच में नहीं पढ़ाई की. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस गाइस, ट्रस्ट मी. जस्ट रिमेंबर 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे, ऐसे ही नहीं हुए हैं. आई रियली, मतलब मैं आपको जो बोल रही हूँ मैं दिल से बोल रही हूँ, और सच में इट विल रियली यील्ड रिजल्ट्स. आप अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो. एनसीईआरटी पे आप कैसे फोकस करोगे? जो भी आपके हाई वेटेज टॉपिक्स मैंने करवाए हैं, दिस इज द सेकंड थिंग. पहली चीज, आपने वो हाई वेटेज टॉपिक्स बनाने हैं. दूसरी चीज, जो भी हाई वेटेज टॉपिक्स आपने बनाए हैं, आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ो. नाउ हाउ डू यू रीड दिस? देखिए बेटा, एक पेन पेपर, ऐसे कुछ मार्कर्स, पेन लेकर बैठ जाइए. जस्ट एक जगह आराम से, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू ग्रास्प इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो मे बी शुरू में जल्दी उठ के थोड़ा बायो पढ़ लिया, बाद में फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व किए सुबह के टाइम पे. सो दैट टाइम यू सिट एंड यू रीड योर एनसीईआरटी. पहली 2-3 रीडिंग, हाथ में पेन पेंसिल कुछ नहीं लेना है, जस्ट सिट,
रीड, दैट इज ऑल। सिर्फ एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो। फोर्थ टाइम एक पेन पेंसिल लेके इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लो। जब आप उसको फिफ्थ बार पढ़ोगे, 1.5-2 घंटे में आप 5 बार एक टॉपिक आराम से पढ़ सकते हो, आराम से, अगर आप फुल अटेंशन से फोकस से बैठे हो। तो जब आप फोर्थ या फिफ्थ बार उसको पढ़ रहे हो, दैट टाइम आपको कुछ चीजें होंगी, यार ये एमसीक्यू में आ सकता है, बिकॉज आपको रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा, कुछ वैल्यूज नजर आएंगे, कुछ साइंटिस्ट के नाम नजर आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बीच की इंफॉर्मेशन नजर आएंगी, कुछ फैक्ट्स नजर आएंगे, तो आपको पता चलेगा यार ये एमसीक्यूज में आ सकता है। आप कुछ कुछ अंडरलाइन करो, कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। फोर्थ फिफ्थ टाइम तक आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा, अब ये लाइन आने वाली है, ये क्वेश्चन। बट कुछ चीजों में आपको लगेगा यार ये वैल्यू मुझे भूल जाएगी, साइंटिस्ट का ये वाला चीज मुझे भूल जाएगी, इस किताब का नाम मुझे भूल जाएगा। हो सकता है वहां पे क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल में कुछ दिया, हो सकता है आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, वहां पर आपको चारों पांचों माइटोकॉन्ड्रिया में कोएंजाइम्स के नाम भूल जाएंगे, ऑर्डर भूल जाएगा, 1 2 3 4 5 एंजाइम। उनको एक कॉपी पे फटाफट ऐसे पेजेस बना बना के लास्ट में लिख लो। कुछ नहीं करना है, फटाफट छोटा सा पेज पेन से लेकर उसको लिखते चलो, एंड नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे वो पेज बढ़ते रहेंगे। हर रोज बस उनको थोड़ा सा रिवाइज करते चलो। ट्रस्ट में, अगर आप ऐसे शुरू करोगे हाई वेटेज टॉपिक्स और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, 3-4 बार पढ़ोगे, उसके बाद उसको अंडरलाइन करके अलग से लिखकर कहीं पे लिख लोगे, यू रियली डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। दिस इज लाइक माई गारंटीड प्रॉमिस टू यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। थर्ड थिंग, जब आपके 1 या 2 चैप्टर हो गए, आपकी एक यूनिट हो गई, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। सबसे बेटर है इफ यू कैन रियली गेट माई बुक। मैंने बहुत मेहनत की है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ताकि आपको अलग से सॉल्व ना करने पड़े। उसमें सारी एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चन है ताकि आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़कर ये ना हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील ना हो, मुझे आता या नहीं आता। उसमें एनसीईआरटी के सारे डायग्राम के क्वेश्चन है, उसके अंदर सारे के सारे आपके ये वाले क्वेश्चन हैं जिन्हें कहा जाता है कि यार ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी के, हल्के से थोड़े से बाहर से आ गए, ये क्या हो गया। ये सारे ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये सारे साइंटिस्ट के नेम, सब कुछ है। आप, या अगर आप अभी नहीं लेना चाहते, आपके पास जो बुक है उसको कम से कम 2 या 3 बार एमसीक्यू सॉल्व कर लो, दैट इज इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो 2-3 बार कर लो, और कोई बुक है किसी पब्लिशर की, कुछ भी है, आप उसको 2 या 3 बार सॉल्व कर लीजिए। इफ यू डू दिस मच, trust me, you will do very, very well in your biology. Do this much. Tell me in the comment section how your preparation is going and how are you feeling after doing this much. Anything that else that you need, we are always there to help you. Take care. Bye bye. God bless you. And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Especially subscribe because बहुत सारे चैप्टर वाइज टेस्ट हम लेकर आ रहे हैं, स्पेशली फॉर नीट 2022 and 2023 एस्पिरेंट्स। टेक केयर, बाय।